Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business, and stock market news of the day. I am Sarabjit Kaur, and along with me is my co-anchor, Subodh Mishra. धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। अगले आधे घंटे में हम देश दुनिया के आर्थिक समाचार आप तक पहुंचाएंगे और आज की खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन रे। उदयन, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सुबोध जी। पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत। Benchmark domestic indices wrap up week on positive note. Sensex gains over 300 points. Nifty settles at 25,285. Defence Minister Rajnath Singh invites Australian businesses to invest, collaborate and innovate with India. Says India is on transformative journey of structural reforms. And global crude oil prices drop over 1%. शेयर बाजार इस हफ्ते बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स आज 300 अंकों से ज्यादा बढ़ा। निफ्टी 25,285 पर पहुंचा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के कारोबारियों को भारत के साथ सहयोग और नवाचार के लिए आमंत्रित किया। कहा कि भारत संरचनात्मक सुधारों की परिवर्तनकारी यात्रा पर है और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें 1% से ज्यादा गिरी। The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. तो सरबजीत, अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। इस हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन आज देश के शेयर बाजारों में बढ़त का रुख बना रहा। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही आज 0.4% बढ़कर बंद हुए। सेंसेक्स 329 अंक बढ़कर 82,501 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 104 अंक ऊपर 25,285 पर बंद हुआ। बीएसई के मिड कैप इंडेक्स में 0.3% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.6% की बढ़त देखी गई। Benchmark domestic equity indices Sensex and Nifty wrapped up the week's last trading session 0.4% higher. The Sensex gained 329 points to close at 82,501, while Nifty added 104 points to settle at 25,285. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange mirrored gains in the frontline indices. The mid-cap index advanced over 0.3% and the small-cap index rose 0.6%. और सेंसेक्स में शामिल 30 में से 22 कंपनियों के शेयर आज मुनाफे में रहे। सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें। स्टेट बैंक के शेयर 2.2%, मारुति के 1.7% और एक्सिस बैंक के शेयर लगभग 1.1% मुनाफे में रहे। सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों पर गौर करें। टाटा स्टील में लगभग 1.5%, टीसीएस में 1.1% और टेक महिंद्रा में 0.6% की गिरावट देखी गई। Among the sectoral indices at the BSE, 17 out of 21 sectors ended in positive zone. Among the top gainers, realty advanced over 1.7%, telecommunication rose more than 1.1%, and healthcare added 1%. In the top laggards, metal lost almost 0.9%, commodities dropped nearly 0.3%, and oil and gas slipped over 0.1%. Udayan, even though the day ended well, there was volatility and differential performance across sectors. Metals lagged, banks and financials led. What do you think is the reason behind this mixed picture? The overall picture, I would say, is of risk on. It's as if a switch has been put on that, people are willing to take some risk. It's primarily been led by the banking sector.
And I suspect that this has got a lot to do with some of the announcements which RBI made, and they're now getting discussed. So it's percolating down the market. It's an understanding the kind of opportunities the banks will now get with some of the norms being loosened up. So sometimes some of these sectors which don't do well is determined by some of the headlines. So it will be interesting to see how the markets now react to some of the headlines that have come out of China, where they're talking about restrictions on magnets and rare earths, and there's a fresh set of restrictions that have come out. Now I don't know whether whether the headlines came later and whether the markets have internalized. So, but overall, I would say it is a day of a more, shall we say, risk-on kind of a thing. So, whenever you get these headlines or information in uncertain times, so when there's uncertainty, there will be volatility because you're starved of. There's dearth of information. I shouldn't say starved. You want more information. The moment the information you get, you think this is what the information is, and you react. Then you realize, then market players may just realize that this is not actually information. They're just reacting. So then the market starts adjusting. So that's how typically it tends to happen. And because of the uncertainty, a lot of changes happening, and people exactly don't know. So whenever there's going to be information, so investors are reacting to headlines. So it's pretty much headline driven. People are not looking at the fundamentals, if you may say so. So I'm not saying that's not important, or people should be looking at it. Both are always at play in the market, and this is what I think is happening. ये जो आप अभी बता रहे थे उदयन, ये चीज अभी अगर देखें तो टीसीएस में ये बहुत साफ साफ दिखाई दिया है कि अर्निंग्स के आंकड़े अच्छे आए हैं. इसके बावजूद आज बिकवाली थोड़ी देखी गई, उस पर थोड़ा नुकसान के साथ बंद हुआ है, और जबकि क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी स्ट्रांग रहे हैं. देखिए आईटी टीसीएस काफी इंटरेस्टिंग है. कई बार क्या होता है सुबोध जी, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कई बार आप जो इन्वेस्टर्स होते हैं, मार्केट होते हैं, उन्होंने माइंड मेकअप कर लिया होता है कि अब इट्स लाइक जैसे टीनेजर्स होते हैं, सेंटिमेंट्स या एडोलेसेंट होते हैं, जो उन्होंने आज मूड ठीक नहीं है, तो फिर सब कुछ ही कुछ मध्यम सा रहेगा. तो ये उस टाइप का है. जैसे कि आपने टीसीएस में डेटा सेंटर्स के से जुड़ी हुई उनके फोरेज के बारे में बात की गई. अब किसी और मार्केट कंडीशन में, किसी और परिवेश में ये शायद थोड़ा सा और पॉजिटिवली रिसीव होता, पर कई जो निवेशक हैं, जो एनालिस्ट हैं, उन्होंने उसको दूसरी तरीके से देखने की कोशिश की. इवन जो आपने जो नंबर्स बताए, कई लोगों को वो नंबर्स उतने पसंद नहीं आए. तो कई बार क्या होता है कि आप उम्मीद ज्यादा करते हैं, और एक बयानिया बन गया, एक नैरेटिव कुछ सेक्शंस ऑफ द मार्केट में बना कि नहीं ये इंडियन आईटी एआई का जो बूम है उसको शायद राइड नहीं कर पा रही. तो कई बार ये सब प्रिवेलिंग थॉट प्रोसेस का सेंटिमेंट, अगेन ये सेंटिमेंट है. तो अगर यहाँ पे कुछ और भी होता तो शायद बिकॉज ऑफ द मूड वो इम्पैक्ट होता. तो दीज आर फेजेस दैट मार्केट गोज थ्रू. जी, और अगर हम देखें तो जो आज हमें खास निफ्टी पर अगर गौर करें हम, कि निफ्टी 25,200 से ऊपर 25,285 पे बंद हुआ है, और ये जो कहा जा रहा था कि 25,200 का एक रेजिस्टेंस चल रहा है उसके आसपास, उसको आज ब्रीच कर लिया उसने, आज पार कर लिया है उसने. ये एक शिफ्ट दिखाई देता है आज. देखिए ये कुछ मुझे ऐसा लगता है, और कई लोगों ये इट्स राइट नाउ आउट इन द मीडिया. तो कई बार ऐसे मौकों में जब आप ऑन अ डे व्हेन थिंग्स आर पॉजिटिव, आप उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा सा रेट कट होगा, फेडरल रिजर्व एक और रेट कट करेगा, उसको फॉलो करके आरबीआई भी शायद एक डविश मूव्स करें. तो जब ऐसी बातें आती हैं तो फिर इस टाइप की मूव्स आप देखने को आपको मिलता है. पर कल अगर मंडे को या नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर हेडलाइन फिर वैसी आ जाती हैं, फिर देन यू विल एक्सपेक्ट. पर अंडरलाइंग चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक पिछले कुछ सालों में एक रिटर्न की उम्मीद, हर चौथे रोज एक नया न्यू हाई हो रहा है.
ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज क्लोजर टू व्हाट अ लॉन्ग टर्म बिहेवियर ऑफ द मार्केट इज, रादर देन वो जो आपने कई एक प्रोट्रैक्टेड पीरियड के लिए देखा था, क्योंकि वो कोविड से रिकवरी होती, कैश पंप हुआ था ग्लोबल इकोनॉमी में, तो वो एक जो था वो एक मोर ऑफ एन आउटलायर बिहेवियर था. ये जो है इट्स क्लोजर टू रियलिटी. जी, और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त है अभी एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सुन रहे हैं मार्केट मंत्र और देखते हैं कि आज रुपए का क्या हाल रहा. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 10 पैसे बढ़कर 88 रुपए 69 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर दिवसीय कारोबार में 99.34 पर चल रहा था. और एशिया के बाजारों का भी हाल बता दें सरबजीत हम, और देखें कि यूरोप में क्या चल रहा है. एशिया पर नजर डालें तो यहां ज्यादातर शेयर बाजार आज नुकसान के साथ बंद हुए हैं. हांगकांग का हैंगसेंग 1.7% गिरा, जापान का निक्केई 1% नीचे और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.9% नीचे बंद हुआ. सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.3% गिरकर बंद हुआ. इसके उलट दक्षिण कोरिया में लगभग एक हफ्ते की छुट्टी के बाद आज के कारोबार में कोस्पी में लगभग 0.25% की बढ़त देखी गई. यूरोप के प्रमुख सूचकांकों में मिला जुला रुख बना हुआ है. ताजा समाचार मिलने तक फ्रांस के कैक में मामूली गिरावट थी, जबकि जर्मनी के डैक्स और लंदन के फुटसी में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया. All right, listeners, we've just seen the picture of the Asian and the European markets. Let's take a turn in the program now. Udayan, there has been a telephonic conversation between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, wherein they have reviewed the positive progress made in the ongoing trade negotiations between India and the United States. And this in the backdrop of US Ambassador's visit to India. Now, can this be seen as a broader shift in tone and an effort to improve strained relations? And in your view, does this mean, a betterment for the Indian stock market? Anything positive coming from this for the stock market in specific? Completely agree. Okay. The last part, I completely agree. The moment you see that headline coming, even if there's a tranche deal or a part deal, which is basically, my sense is that's what the negotiators are looking at. They want to pick up the low-hanging fruits first and then keep moving ahead. So the moment you start seeing that, you will find markets reacting positively and investors. The FPI is also reacting positively. You'll see impact on the currency market. So the kind of pressure that the rupee has been in, that also is going to ease out. So that's going to help in many, many ways. The last bit that I would want to add is that at least I always thought that this is the trajectory it will take. See, these are both the countries are very, very hard negotiators, and we have some really difficult issues to deal with. And the whole point was how we are going to come about it, and both the economies need each other, no matter what the rhetoric is, and eventually these things triumph. And you will see some results coming out. It's a question of when it's going to come out. जी उदयन, जो अभी जैसा बता रहे थे आप कि जो भारत और अमेरिका के व्यापार संबंध हैं, उसमें वैसे भी कई पहलू हैं और कई पेच हैं उसके बीच. लेकिन जो अभी देख रहे हैं, जैसा आपने अभी भी कहा कि दोनों देश बहुत अच्छे से निगोशिएट करने वाले हैं, दोनों के अपने अपने हित हैं, दोनों अपने अपने हितों पर अड़े रहेंगे, लेकिन दोनों के बीच कहीं ना कहीं कोई एक बीच का ग्राउंड बनेगा जहां की बातचीत बनेगी. जैसे ही दोनों देशों के बीच लगता है कि बातचीत कुछ बनने वाली है, सुधरने वाली है, बाजार पर उसका असर भी साफ साफ दिखाई देने लगता है. और वैसे क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने अपना रुख थोड़ा सा नरम किया है भारत के प्रति? क्योंकि देखा हमने जेनरिक मेड्स को अभी छोड़ दिया है. देखिए, नेगेटिव जो हेडलाइंस हैं वो आना कम हो गया, तो वो एक अच्छी बात है. कई बार आप पर्क अप करते हैं फिर उसको लाते हैं, तो ये नेगोशिएशन टैक्टिक्स हैं. पर सुबोध जी, मैं आपको बताता चलूं, शायद जो श्रोता है उनको ये याद नहीं होगा, क्योंकि काफी साल हो गए. हमने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील की थी, वो इतना ही पेचीदा था, इससे ज्यादा था.
और वो डील अगर हम कर सकते थे, और काफी मशक्कत के बाद की थी, और उसके इम्प्लीकेशन दोनों देशों में पॉलिटिकल भी थे, तो वो अगर हम कर सकते थे तो ये भी कर सकते हैं। दोनों डेमोक्रेसीज हैं, हमारे पास स्किलफुल नेगोशिएटर्स हैं, हम फ्री मार्केट्स में बिलीव करते हैं, तो वो उस वहाँ पे काफ़ी स्पेसेस होते हैं जहाँ पे आप नेगोशिएट करके एक कंसेंसस आप ला सकते हैं। तो ये आप मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। Listeners, stay tuned. We'll be back after this short break. Listeners, welcome back to Market Mantra, and let's see what's the news from the US markets. US stocks edged down yesterday. The Dow Jones Industrial Average closed over 0.5% lower. S&P 500 dipped almost 0.3%, and the tech-heavy Nasdaq Composite Index ended nearly flat, with both the indices retreating from fresh all-time highs hit during the season. Meanwhile, investors are struggling to find catalysts due to a lack of economic data from the US government amid ongoing shutdown. Defence Minister Rajnath Singh has said that the country is on a transformative journey of structural reforms, particularly in manufacturing. He said India is now the fourth largest economy and the fastest growing economy in the world. Addressing the India-Australia Defence Industry Business Roundtable in Sydney today, Mr. Singh said the defence production ecosystem is being continuously liberalised through policy interventions and simplification of compliance mechanisms. The minister invited the Australian business community to invest, collaborate and innovate with India. He said India and Australia can develop cutting-edge technologies, build advanced platforms together. Our defence exports have reached approximately 23,622 crore last year, and Indian companies now export to around 100 countries. Friends, strategic reforms such as Make in India, production-linked incentive schemes, and a digital transformation have fostered a conducive environment for innovation, investment, and manufacturing growth. उदयन, अभी देख रहे हैं हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो युद्धाभ्यास की बात है और दोनों देशों के बीच रक्षा में जो साझेदारी की बात हो रही है, तो अगर हम देखें दोनों ही देश हम लोकतांत्रिक देश हैं और दोनों के पास काफ़ी बड़े कोस्ट लाइन्स हैं हमारे पास, और ख़ास करके जो इंडो चाइना जो हमारा इंडो पैसिफिक क्षेत्र है और दक्षिण चीन सागर वाला जो है साउथ चाइना सी, उसमें जो तनाव है उसको देखते हुए हमारा ये सहयोग जो है रीजनल हमारे स्थिरता के लिए कितना योगदान दे सकता है। और दूसरी बात, आपकी राय चाहूँगा कि भारत अब रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। अगर खास करके हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद के जो आंकड़े देख रहे हैं, कई देशों से हमें ऑर्डर्स मिले हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया के साथ इस नई साझेदारी से, अगर हम देखें इसमें सामरिक साझेदारी से, क्या भारत के लिए एक नया युग शुरू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और इसमें प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनको जितना आप खोल देंगे, जितना उनको पार्टिसिपेट करने देंगे, डिफेंस से जुड़े हुए स्टार्टअप्स जो हैं, चाहे वो ड्रोन्स हैं या मिलिट्री एप्लीकेशन वाले सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज की चीज़ें हैं, एरोस्पेस हैं, तो ये जो चीज़ें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, सुबोध जी, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो स्टार्टअप्स हैं, पार्टनरशिप्स हैं, एग्जिस्टिंग लार्ज कंपनीज, उनकी साझेदारी तो इम्पोर्टेंट है ही। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लोगों का एक ट्रेड एग्रीमेंट भी है उनके साथ, तो वो भी जुड़ के एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप बन सकती है। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सुन रहे हैं मार्केट मंत्र, और अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री से क्या आंकड़े आए हैं एमफी के। इस साल सितंबर में यानी पिछले महीने म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिए निवेश का आंकड़ा अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। अगस्त के मुकाबले सितंबर में एसआईपी निवेश में लगभग 4% की बढ़ोतरी हुई। अगस्त में यह आंकड़ा 28,265 करोड़ रुपए का था, जो सितंबर में 29,361 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पूरे म्यूचुअल फंड उद्योग की बात करें तो उनके द्वारा प्रबंधित कुल परिसंपत्ति यानी AUM 75,61,000 करोड़ तक पहुंच गई। अगस्त में यह आंकड़ा 75,18,000 करोड़ रुपए का था। उदयन,
एसआईपी के आंकड़े बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं वैसे तो हम देखें, लेकिन हालांकि कुछ उसमें सेगमेंट्स में देखा गया है कि गिरावट आई है, लेकिन गोल्ड ईटीएफ में अगस्त के मुकाबले सितंबर में लगभग 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मौसमी बिहेवियर है। तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उसमें जब इक्विटी बिल्कुल आसमानों को छू रही थी, अभी भी ऊंचे हाई लेवल्स पे ही हैं, तो तब थीमेटिक फंड, सेक्टोरल फंड्स वहां पे जा रहा था। पर सुबोध जी, 2 इंटरेस्टिंग बातें हैं जो यहाँ पे कहने लायक है। ये एक ट्रेंड बना हुआ है और शुक्र है कि ये ट्रेंड टूटा नहीं है। अगर ये कांस्टेंट इन्फ्लोज नहीं होते तो मार्केट का जो करेक्शन होता, कई लोगों का मानना है कि बहुत डीप करेक्शन होता। तो हम रेजिलियंस की बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, तो ये जो कांस्टेंट रेगुलर इन्फ्लोज हो रहे हैं एसआईपी से, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दूसरी बात इम्पोर्टेंट जो है, क्योंकि ऑनलाइन इन्वेस्टिंग एसआईपी में से हो रहा है, तो आपके जो बड़े शहरों से छोटे जो शहर हैं, छोटे जो ज्योग्राफिकल यूनिट्स हैं, वहां तक ये जो म्यूचुअल फंड्स के जो रेगुलर निवेश है वो पहुंचा है। तो एक ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन हुआ है, एक रेजिलियंस जो है वो लार्जर स्टोरी के कुछ हिस्से हैं। Well, let's move on to the next story of the day. India's foreign exchange reserves decreased by $276 million, reaching around $700 billion in the week ending on 3rd of October. According to the weekly statistical supplement released by the Reserve Bank of India during the last week, foreign currency assets, a major component of the reserves, dipped over $4 billion to $577.7 billion. जी, और देखें कि जीएसटी पर क्या है हमारे पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव पिछले महीने की 22 तारीख से जारी है। यह पूरे देश में लाभकारी साबित हो रहा है। आज इस कड़ी में पेश है मध्य प्रदेश के उद्योगों पर जीएसटी सुधारों के प्रभाव पर एक रिपोर्ट। नया जीएसटी सुधार मध्य प्रदेश के किसानों, कारीगरों, औद्योगिक श्रमिकों और छोटे व्यवसायों के लिए बड़ा प्रोत्साहन है। नमकीन पर नए जीएसटी दर से यह अब लगभग 6 से 7% तक सस्ता हो गया है। इससे राज्य के प्रसिद्ध इंदौर नमकीन क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है, जो करीब 3.5 लाख नौकरियां प्रदान करता है। वहीं कृषि मशीनरी, पंप, ट्रैक्टर और अन्य उपकरण के 5% कर श्रेणी में आने से लागत में 7 से 13% तक की कमी आई है। इससे छोटे तथा सीमांत किसान आधुनिक उपकरण खरीद पाएंगे। पारंपरिक आदिवासी शिल्प जैसे गोंड चित्रकारी, टेराकोटा, लाख के खिलौने, डोकरा शिल्प और पीतल के बर्तन जैसी वस्तुएं लगभग 6% सस्ती हो गई है। नए सुधारों का उद्देश्य त्योहार के मौसम में उत्पादों की बिक्री बढ़ाना, रोजगार को सृजित करना और मध्य प्रदेश की ग्रामीण शिल्प तथा औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं को बल देना है। रोहन के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। Global crude oil prices declined over 1% today after Israel and Hamas agreed to the first phase of a plan to end the war in Gaza. Brent crude was trading over 1.2% down at $64.41 per barrel, and WTI crude was also trading over 1.2% down at $60.74 per barrel when reports last came in. और सरबजीत, आपके पास शायद सोने चांदी की भी कुछ खबर हो, कुछ चमक बढ़ी है? In the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading 1.3% down at 1,21,420 rupees per 10 grams, while silver was also trading over 1.4% down at 1,48,790 rupees per kilogram a short while ago. तो भारत में तो सस्ता हुआ है, लेकिन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.6% बढ़कर 1,21,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चल रहा था। और दिसंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 1.5% बढ़कर 1,48,611 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। यानी देश का, और अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो दोनों जगह सोने और चांदी के आंकड़े अलग अलग थे। उदयन, मार्केट मंत्र में आने और आज के समाचारों पर बहुत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices wrap up week on positive note. Sensex gains over 300 points. Nifty settles at 25,285. Defence Minister Rajnath Singh invites Australian businesses to invest, collaborate and innovate with India, says India is on transformative journey of structural reforms, and global crude oil prices drop over 1%. And that's it in today's edition of Market Mantra. Goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.